Welcome back. Now, the NIA has arrested a medical practitioner from Kondwa in connection with the ISIS Maharashtra module case on the charge of promoting violent activities of the proscribed terror group. Adnan Ali Sarkar, who is now the fifth person arrested in the case of the National Investigation Agency that had registered back on the 28th of June. Sarkar, who holds an MBBS and MD degree, was attached to several hospitals in the city and was practicing as an anesthetist. When it comes to the NIA, earlier had arrested 4 people in the case during simultaneous raids that were conducted in Mumbai, in Thane and also in Pune on the 3rd of July. महाराष्ट्र आईसिस मॉड्यूल में एनआईए को एक बहुत बड़ी कामयाबी अपने हाथों में लगी है, जहां पर इस पूरे प्रकरण के अंदर उन्होंने 5वें व्यक्ति अदनान अली को गिरफ्तार किया है पुणे के कोंडवा में उसके घर से। इस पूरे गिरफ्तारी के दौरान अक्यूज के घर से कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं जो कि आईसिस से जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी मिले हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी आपत्तिजनक मटेरियल्स मिले हैं जिसका इस्तेमाल ये डॉक्टर युवाओं को बहलाने में, उनको भड़काने में इस्तेमाल करता था। ये भी कहा जा रहा है कि वो सभी नए युवाओं को आईसिस की तरफ आकर्षित करता था। पूरे महाराष्ट्र आईसिस मॉड्यूल में ये 5वीं गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जो आईसिस के डॉक्यूमेंट मिले हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिले हैं उसको खंगाल कर एनआईए और भी ज्यादा लोग जो इस पूरे मॉड्यूल और सिंडिकेट में जुड़े हैं उनकी शिनाख्त करेगी और इस जांच को आगे बढ़ाएगी। Now, as per the statement that has been released by the NIA, the material that has been recovered from the accused residence has exposed his allegiance apparently with the ISIS and his role in promoting outfit's violent agenda. Where the probe agency has been saying that Adnan Ali Sarkar was trying to disturb the unity, integrity, security and sovereignty of the country, he also stands accused of waging a war against the government of India as part of the ISIS conspiracy through the organization's Maharashtra ISIS module. But these serious charges are notwithstanding, with the Samajwadi Party leader and MLA has been politicizing and trying to give it a communal spin to the NIA action, saying that the people from the minority community are being painted as traitors as it helps the बीजेपी to stay in power. इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों के साथ जितना भी कार्रवाई होगी, जितना भी जुल्म ज्यादती होगी, हमारा मेजॉरिटी को हमको खुश करके कि हम मुसलमान गद्दार हैं, ये झूठ की एक कहानी गढ़ करके ये लोग सत्ता में रहना चाहते हैं। अभी जो पूना में पकड़े गए उनके पास कुछ किताबें मिली हैं जो उनकी लिखी हुई हैं, उनके बारे में है, जाकिर नायक। देखिए ये किताबें तो इंटरनेट पे मौजूद हैं, तो ये जबरदस्ती का ये करके ना सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। Well, also when it comes to the Maharashtra BJP leader and MLA Nitesh Rane, meanwhile, went to the other side of the extreme, asking as to why only names are belonging to a people from a particular community come up when it comes to anti-national activities. Listen into the other side as well. ISI में रिक्रूटमेंट में उन्हीं लोगों का नाम क्यों आ रहा है? कुछ भी एक्टिविटीज होते हैं तो फिर उसमें कभी भी किसी हिंदू समाज के लोगों का नाम क्यों कभी भी सुनाई में नहीं आता? हमेशा एक ही धर्म के लोगों की लिस्ट उधर सुनाई में आती है। उस धर्म के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने सोचना चाहिए कि हमारे धर्म में ये जो जिहादी सोच के जो लोग हैं इनके वजह से पूरे के पूरे मुस्लिम धर्म का जो नाम बदनाम हो रहा है, उस बारे में वहाँ के जो धर्म गुरु है, सीनियर है, उनके बारे में सोचना चाहिए। Well, hitting back at the BJP, the opposition parties, including the Congress and the Shiv Sena of the Uddhav Thackeray faction, has denounced attempts to link criminals or terrorists to any particular region or community, saying that, stating that anyone who is against the nation should be acted against or without any bias. समुदाय कोई भी गुनहगार की जात नहीं होती, उसको समुदाय से जोड़ा नहीं जाता। मालेगांव बाणकांड में भी कोई दूसरे समुदाय के लोग थे तो कि हिंदुओं ने किया, ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी की टैक्टिक्स है कि एकदम समुदाय को जोड़कर मुस्लिम विरोधी हिंदू करेगा। जो भी देश से गद्दारी करता है उसकी जात नहीं होती, कार्रवाई होना चाहिए, और जब ये पूरा डिटेल जब बाहर आएगा उसके ऊपर तब बात करेंगे। देश विघातक शक्ति जो भी होगी उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। समुदाय का क्या संबंध है? कुरूल करके भी शिक्षा देना चाहिए और जो कोई एनआईए के पकड़ा उसको भी शिक्षा देना चाहिए। उसमें देश का संबंध, उसमें जात धर्म का क्या संबंध आता है? जो कोई देश के खिलाफ होगा, एनआईए वाला होगा या कुरूल कर होगा, दोनों की भी सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए।